Hi everyone, welcome back to AgriClarity, a unit of clarity for sure. In today's Concept Clarity series, we'll be covering the second part of Pest of Store Grains. So let's get started. So in the previous part, we had covered all the internal feeders of our stored grain insect pest classification. In today's series, we'll be covering the external feeders such as red floor beetle, sawtooth beetle, cigarette beetle, and rice moth. So let's see one by one about these feeders. So the first uh, pest of today's session is floor beater. So the floor beater species are generally of two types. First is rust red floor beater and second is confused floor beater. The rust red floor beater is known by the Tribolium castaneum and the confused floor beater is known by Tribolium confusum. The family of the floor beater is Tenni brinodi. Okay, and again they are from the order Coleoptera. The host, or we can say the species or the region where these beetles feed are generally the germ portion of grains, and the sorry, and the damage done by these pests are these pests feed generally the adult and larva feed cannot feed on the whole grain, so they damage the floor and the broken grain parts. Okay. So इस सीरीज में आपको ये ध्यान रखना है आई हैव ट्राई टू सेग्रीगेट दैट यू गेट टू नो द स्पीशीज वेरी वेल about the particular beat I mean pest and the family. Generally the questions are asked on the host, damage, and if there is any particular indicator and any particular life cycle description. Okay, so we'll be discussing in this way. So the indicators which shows that the particular host is damaged by the particular pest is that uh, the gray for the floor beater indicator is that they are of the grains show grayish moldy floor with certain bad smell from them. Okay. लाइफ साइकिल में इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है आपको क्या क्या मतलब सब चीज़ें याद करना है, इसमें बस आपको पर्टिकुलर चीज़ें याद करना है, जैसे कि द एग्स लाइक दे आर वेरी काइंड ऑफ स्टिकी एंड सिलेंड्रिकल शेप. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू शुड नो दैट कि एग्स कैसे ले हो रहे हैं. ओके, एग्स के क्वेश्चंस ऐसे ही हो सकते हैं. सबके एग्स का लेइंग पैटर्न या लेइंग रीजन डिफरेंट होता है, तो आपको एग्स का ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, देन टॉकिंग अबाउट द लार्वा, आपको इसमें लार्वा में बस एक पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वाइट टू येलो है, बट दे हैव हैरी वर्म लाइक टू स्पाइंस एट द एंड. ओके, एंड लाइफ साइकिल अगर आपको याद होता तो वेल एंड गुड, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है. If we discuss in more detail about these two species of our floor beetle, we first जो फ्लोर बीटर का कलर, जैसे अगर कास्टनेनियम की बात की जाती है तो उसमें उसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन, एज आई हैव इंसर्टेड द इमेज ऑफ द कैस्टेनियम, एंड द कन्फ्यूजन हैव रेडिश ब्राउन टू ब्रिक रेड कलर. सो मतलब दोनों के सेम कलर्स है. ओके, द विंग्स ऑफ कैस्टेनियम इज दैट दे आर of functional wings, and whereas confusum have non-functional wings. एंटीना दोनों के देखे जाए तो अगर फर्स्ट वाली स्पीशीज की बात की जाए तो ग्रेजुअली थिकन होते जाता है थर्ड सेगमेंट्स के बाद से, और ये कंफ्यूजम में क्या होता है सडनली बीच बीच में इंटरसेक्शन में बल्ज्ड होता है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से फ्लोर में मतलब जो हमारे ग्रेन के पार्ट्स होते हैं या पर्टिकुलरली ग्रेन के फ्लोर होता है उसमें किस तरीके से हमारा फ्लोर बीटर आई मीन इम्पैक्ट करता है. एज द नेम सजेस्ट ये फ्लोर बीटर है तो मतलब कि ये फ्लोर को डैमेज करता है. ठीक है, ये हो गया. So the next pest of our today's session is sawtooth grain beetle, or we can say Oryzophilus surinamensis and mercator. Okay, as the name suggests, sawtooth का मतलब ये हुआ कि it is talking about particularly about its antenna. तो यहाँ से आप antenna से differ कर सकते हो कि हमारा जो beetle है वो कैसा है. Okay, so इसके family हो गया Silvinidae, sorry, Silvinidae. And the host of these pests is that they feed on paddy, wheat, maize, sorghum, and pulses. The damage of these pests is that, so the pest damage is that they are
cause a surface roughening, और we can say जो particular grain होता है उनके surface को feed करके ये rough कर देते हैं. They cause, or they because of their infestation, the grain emits certain of odor and heating of the grains are seen. इंडिकेटर में कैसे होगा, देखा जाता है कि जनरली जो हैवी इन्फेस्टेशन होता है वो ब्रोकन या लो क्वालिटी ग्रेन में ज़्यादा दिखाई देता है. तो इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हो या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हमारा जो ग्रेन है वो सुपीरियर क्वालिटी का है या नहीं. ओके, पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपको बताया 600 लाइक टीथ जो थोरैक्स पे होता है, वो भी है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोरैक्स का रीजन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 100 लाइक टीथ है. ठीक है, ये चीज़ हो गई. देन एडल्ट जो होते हैं इनके कहाँ पे ले करते हैं, इनका एक ये भी इम्पॉर्टेंट है. दे ले इन द गोडाउन्स ऑफ इन द फ्लोर. और जो इनका लार्वा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना. द लाइफ साइकिल जो इनकी इम्पोर्टेंट ये है कि दे स्पीड अप द लाइफ साइकिल व्हेन देयर इज अ फेवरेबल कंडीशन ऑफ रेनी वेदर. ओके, next, there is also this is very important pest of today's session, which is secret beetle, which is also known by Lesioderma sericorni. Okay, the family of this beetle is that they belong to Anobelidae, and again they are from the order Coleoptera. और जो ये सीक्रेट बीटर होते हैं वो जनरली सारे जो भी ड्राइड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि टोबैको, स्पाइसेस में रेड या ब्लैक स्पाइसेस, रेड या ब्लैक पेपर एंड ड्राइड हर्ब्स, ये सारे पे ये लोग फीड करते हैं. जनरली जो भी ड्राइड प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ये फीड करते हैं. डैमेज कैसे देखा जा सकता है, दे बो होल्स into the tobacco products like cigarette and cheroots, or we can say cigars and chewing tobacco. It also damages the furniture, stuffing furniture. So ये भी important डिफरेंशिएटिंग चीज़ ये है कि टबैको वगैरह के साथ ये फर्नीचर्स को भी इम्पैक्ट करते हैं. अगेन द indicators we can see that there is a certain type of bore holes present on the particular प्रोडक्ट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज इंसर्ट किया हुआ है किस तरह से सिगार बिटल दिखता है. इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड हियर इज द प्रोडक्ट. लाइक यू कैन सी देर इज दिस सीक्रेट यू कैन सी दैट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लोरी या फिर वी कैन से पाउडरी मास एक्यूमुलेट हो गया बिकॉज ऑफ दिस पेस्ट इन्फेस्टेशन. ओके, लाइफ साइकिल में जैसे देख सकते हैं कि इट इज ऑफ लाइट ब्राउन कलर, राउंड बीटल है ये विद हम्ड बैक. ये आपकी हम्ड बैक हो गई. ओके, ये हम्ड बैक हो गई. फिर बाद में इसका जो ये जो पेस्ट होते हैं वो अपने एग्स जो होते हैं अराउंड द फूड मटेरियल्स ही ले करते हैं. बोथ लार्वा एंड अडल्ट बोर into the tobacco products, and जो ग्रब्स होते हैं वो येलो वाइट टू ब्राउन हेड होता है. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कि जो प्यूपा होता है, जो इनका लार्वा होता है वो प्यूपेट करता है इन द सिल्कन वुवन कवर्ड विद फूड पार्टिकल्स. ओके, मतलब कि इनसाइड द फूड ही ये पेस्ट जो होते हैं अपना प्यूपेशन अटेंड करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पेस्ट ऑफ द टुडेज सेशन इज ग्रीन मॉथ, और वी कैन से एग्नोमिस ग्रेन मॉथ. ये or the scientific name of this pest is Citrotroga citronella. As you can see, ये Sirenella, sorry, Citrotroga sirenella. As you can see, ये जो है हमारे सीरियल्स को टारगेट करता है. ओके, द फैमिली ऑफ दिस पेस्ट इज गैलिचिडी. ये हमारे जो होस्ट होते हैं जैसे कि पैडी, वीट, मेज, ज्वार, बार्ली, इन सबको टारगेट करते हैं. डैमेज में पिकुलर ये चीज़ यहाँ पे डिनोट की गई है कि जो डैमेज होता है जनरली मिल्ड राइस में नहीं होता. ठीक है, इसका मतलब होता है जो अनमिल्ड राइस जो प्रेजेंट होते हैं गोडाउन्स में, जनरली उन पे ये ग्रीन मॉथ्स अपने इन्फेस्टेशन करते हैं. देन जो ये मॉथ होता है वो बोर करता है ग्रेन में. डैमेज अप्रॉक्स 30-50% ऑफ द सीड को कॉज करता है. जो इन्फेस्टेशन होता है जो जनरली टॉप 30 सेंटीमीटर ऑफ द ग्रेन लेयर, मतलब कि अगेन अगर ग्रेन सैक है उसके ऊपर के 30 सेंटीमीटर तक ही ये अपना इन्फेस्टेशन अटेंड कर सकता है, मतलब कि सुपरफिशियल लेवल तक ही अपना इन्फेस्टेशन कर सकता है. ओके, एक ग्रेन बैग की बात की जाए तब इंडिकेटर्स क्या होता है, जो भी ग्रेन बैग्स होते हैं उसमें से सर्टेन स्मेली पुअर क्वालिटी ग्रेन्स हमें रिसीव होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द लाइफ साइकिल. अपीयरेंस में आप देख सकते हो कि स्ट्रॉ कलर्ड विथ नैरो फ्रिंज्ड विंग्स. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रिंज्ड विंग्स है और ये थोड़ा सा स्ट्रॉ कलर्ड का है. इस तरीके से दिखते हैं. इनके एग्स क्या होते हैं, सिंगली या फिर क्लस्टर में होते हैं नियर द ग्रेन्स इटसेल्फ,
and the larva period is of 3 weeks. The pupa pupates inside the grain in silk cocoon, and the generation, or we can say 3 to 4 generations, are always uh, reared from annually from this pest. Okay. Next pest of today's session is rice moth, which is also a very important pest, which is asked in various agriculture exam. Then so इसका जो scientific name है वो Corsicera cephalonica. Okay, the family of this pest is Geleridae, and the host of this pest is rice, maize, sorghum, gram, groundnut, and the cottonseed. If we say about the damage of this pest, the larva bores or feeds and then feeds on the grains. The food grains are present with the frass, molds and dense webbing. Okay, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ग्रेन होता है उसमें फ्रास इन द सेंस, जैसे अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रेन को अगर आप देखोगे, अगर उसमें डैमेज हो गया होगा तो उसमें से बहुत ज़्यादा पाउडरी मास निकलता है, ठीक है। तो उसी पाउडरी मास को हम इन्फेस्टेशन के टर्म में फ्रास कहते हैं। ओके, देन इंडिकेटर्स क्या होता है इस ग्रेन का, आई मीन इस पेस्ट का, कि ये डैमेज ग्रेन जो फ्लोर या फिर फ्लोर होता है उनमें से एक सर्टेन डिस्टिंक्ट बैड ओडर एमिट होता है, जो दिखाता है कि वो ग्रेन हमारे लिए या फिर एक पब्लिक कंजप्शन के लिए अनफिट है। ओके, लाइफ साइकिल में आप मौत को देख सकते हो, पेल बफ ब्राउन कलर का हो गया, अगेन इट ऑल्सो हैज अ फ्रिंज टाइप ऑफ विंग्स, देन डार्क वेवी मार्किंग्स, ऐसा कुछ कहा गया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका भी सेम ग्रीन मॉथ के जैसे फ्रिंज विंग्स होते हैं, और ये भी 6 generations पर ईयर रेयर करता है। ओके, so let's quickly compare all the pests we have discussed in today's session. So यहाँ पे मैंने denote किया है कि we'll discuss the what are the effects caused by the pest, okay, what are the damage type caused by these pests and the special signs. Okay, so जैसे हमने पढ़ा था कि floor beaters, as the name suggests, they target floor and broken grains. इनसे इनका damage type अगर बात की जाए तो there is presence of moldy smell, floor spoilage, and the adults can't feed on the whole grains. मतलब कि ये जो germ पार्ट होता है ग्रेन्स का उन पे ही फीड करते हैं। ओके, देन सॉ टूथ बीटल की बात की जाए, ये ब्रोकन ग्रेन्स पे फीड करते हैं, या फिर जो लो क्वालिटी ग्रेन्स होते हैं उन पे फीड करते हैं। सरफेस रफनिंग होता है, हीटिंग शो करते हैं डैमेज टाइप में, एंड द स्पेशल साइंस इज दैट दे प्रिफर्स क्रैक्स एंड ब्रोकन लॉट्स, जहाँ पे ये आराम से वहाँ पे फीड कर सके, देन वहीं पे एग लेइंग कर सके। ओके, देन नेक्स्ट पेज इज सीक्रेट बीटल। अगेन ये जो ड्राइड हर्ब्स, टोबैको, स्पाइसेस, इन सब को करते हैं, बोर होल्स या फिर पाउडरी मास वहाँ पे प्रेजेंट होता है डैमेज में, एंड दे मे ऑल्सो बोर इनटू फर्नीचर। तो ये डिस्टिंक्टिव फीचर था। ओके, देन नेक्स्ट इज ग्रेन मॉथ। अगर ग्रेन मॉथ की बात की जाए, पैडी मेज एंड वीट को इम्पैक्ट करते हैं, 30 to 50% सीड डैमेज हो जाता है, डिस्टिंक्ट ओडर शो करता है, एंड लार्वा जो होता है वो बोर करता है इनसाइड द ग्रेन। लास्ट जो पेस्ट था हमारे ऑफ आवर टुडे सेशन इज राइस मॉथ। इसमें हमने देखा कि राइस, ग्राम, कॉटन सीड, काफ़ी सारे मेज, ज्वार वगैरह में भी ये डैमेज करता है। डैमेज सिम्टम्स में देखा गया था कि ये जनरल डैमेज जो मतलब ग्रेन में होता है, फ्रास होना, इंटरनल वेबिंग होना, वो सब शो करता है। सिमिलरली ग्रेन मॉथ के जैसे ही होता है पूरा इसका लाइफ साइकिल। ओके, सो अब हम कंबाइनली सारे स्टोर ग्रेन पेस्ट के मैनेजमेंट को देखते हैं कि किस तरीके से सारी जो हमारा स्टोर ग्रेन प्रेस है उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। सो फर्स्ट हम प्रिवेंटिव तरीके से देखा जाएगा या फिर प्रोफिलैक्टिक मेजर्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हम फील्ड ट्रीटमेंट करते हैं। फील्ड ट्रीटमेंट हम मेच्योर प्लांट्स को मेलाथियोन से स्प्रे कर देते हैं ताकि एग का ट्रांसफर ना हो। क्लीनिंग और या थ्रेशिंग हम करते हैं, जिसमें हम थ्रेशिंग यार्ड्स को क्लीन करते हैं ताकि वहाँ पे कोई भी तरीके से एग्स या प्यूपा या जो भी पेस्ट के लेफ्ट ओवर्स वो सब ना मिले, क्लीन एनवायरनमेंट रखने की कोशिश करते हैं। हम एक क्लीन या नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम क्लीन या फिर न्यू ब्लैक बैग्स को यूज़ करते हैं ताकि इंसेक्ट उसमें एंटर ना कर सके। ओके, गनी बैग्स में ड्राइंग ऑफ ग्रेन किया जाता है, जिससे लेस देन 10% अगर मॉइस्चर अटेन किया जाए तो बिफोर द स्टोरेज, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ग्रेन लॉट को ये सारे स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट से बचाने के लिए। नेक्स्ट इज पेस्ट फ्री ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। चेक करना है कि किसी जगह पे
इंसेक्ट के कैरियर्स तो नहीं है, फेवरेबल टेम्परेचर तो नहीं है, सेफ स्टोरेज करना है, मॉइस्चर रैट प्रूफिंग करना है, सील द क्रैक्स, ताकि क्योंकि काफ़ी सारे जैसे सॉ टूथ का हमने देखा था कि वो क्रैक्स में प्यूपेट करते हैं, वहीं पे लेइंग करते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। क्लीनिनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसइंफेक्शन कर सकते हैं हम, स्प्रे जो भी गोडाउन के वॉल्स होते हैं उस पर हम मैलाथियोन से स्प्रे करके क्लीनिंग कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये चीज़ दिखी गई है, अगर सीड को अगर हमको ट्रीटमेंट करना है तब काओलिन, लिंडेन, मैलाथियोन इन सब का यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रेन का ट्रीटमेंट करना हो हम उसमें काओलिन या नीम कर्नल यूज़ कर सकते हैं। देन पल्सेस का अगर हो तो एडिबल ऑयल या फिर काओलिन कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये सारे कंज्यूमेबल ग्रेन्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम कुछ भी इंसेक्टिसाइड यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ओके, जो भी नेचुरल या फिर बॉटेनिकल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हम उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं जो ह्यूमन के कंजप्शन के लिए भी सेफ हो। ओके, देन नेक्स्ट इज हम क्यूरेटिव मेजर्स की बात करते हैं। अब क्यूरेटिव मेजर्स में मेन मेथड जो जनरली यूज़ किया जाता है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या होता है, जब आप एयर टाइट स्पेस में एक पर्टिकुलर गैस के थ्रू आप जो पेस्ट होता है उनको कंट्रोल करते हो तो हम उसको फ्यूमिगेशन कहते हैं। जनरली इसमें कॉमन जो फ्यूमिगेशन यूज होता है वो होता है एल्युमिनियम फॉस्फाइड का। अगर आप 3 तरीके से फ्यूमिगेशन किया जा सकता है। फर्स्ट इज द कवर मेथड, सेकेंड इज द शेड मेथड एंड थर्ड इज द कंटेनर मेथड। कवर मेथड में आप क्या कर सकते हो, ग्रेन अगर आपने कहीं थ्रेशिंग लैंड में ऐसे आपने रखा हुआ है तो आप उसको मड या सैंड से सील कर दो, देन उसमें आप गैस को एमिट, गैस के थ्रू उसमें फ्यूमिगेशन कंडक्ट कर सकते हो। या तो आप शेड एक प्रॉपर शेड यूज कर सकते हो जिसमें आप जहाँ से प्रॉपर एयर टाइट शेड होना चाहिए जहाँ से कोई भी लीक्स ना हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। या तो एक पर्टिकुलर कंटेनर ले लीजिए, ठीक है, उसमें आप ग्रेन को एक बंच बल्क बैच में बैच बाय बैच आप कर सकते हो और उनको उस तरीके से फ्यूमिगेशन किया जा सकता है। ओके, अदर मेथड्स की बात की जाए तो आप मैकेनिकल ट्रैप्स होते हैं जैसे लेसोडर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मैकेनिकल ट्रैप है। एप्स्टेसिया एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लाइट ट्रैप का एग्जांपल है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी किया जा सकता है, आप ग्रेन्स को स्पिनिंग कर सकते हो 2000-30,000 आरपीएम में जिससे इंसेक्ट्स किल हो सकते हैं। देन एक आता है डिवाइस जिसको बोलते हैं एंटोलेट, एक कमर्शियल मशीन है जिसमें आप ग्रेन को डालेंगे तो वहाँ से ये डिवाइस उसमें प्रेजेंट जो भी ग्रेन्स पेस्ट होते हैं हीट के थ्रू उनको किल कर देता है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस मैनेजमेंट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डूज। डूज में ये है कि आपको ग्रेन का एक सर्टेन मॉइस्चर लेवल मेंटेन करना है बिलो द 10%। आपको गोडाउन्स रेगुलरली क्लीन मेंटेन करना है। रिकमेंडेड डोज में ही आपको इनपुट जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स में जो भी हमने पढ़ा था, जो भी केमिकल्स थे उनको यूज़ करना था, एक रिकमेंडेड डोज में ही करना है। और फ्यूमिगेशन स्टाफ जो आप फ्यूमिगेशन करने के लिए आप लोगे वो ट्रेन स्टाफ होना चाहिए। ओके, डोंट्स की बात की जाए तो फर्स्ट ये है कि यूज ऑफ सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स इज बैंड। ओके, क्योंकि आप ह्यूमन कंजप्शन के लिए ग्रीन यूज करते हो तो आप सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज आपको केमिकल्स कभी भी एडिबल ग्रेन्स के साथ मिक्स नहीं करना है। सेकेंड इज लिविंग गैप्स अनसील्ड ड्यूरिंग फ्यूमिगेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस तरीके से इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी ऑफ फ्यूमिगेशन काफ़ी डिक्रीज हो जाती है अगर गैप्स, अगर वहाँ पे 3 मेथड्स जो हमने बताए थे अगर उनमें से किसी भी एरिया में किसी भी मेथड में गैप्स होते हैं तो। और लास्ट इज हैंडल द फ्यूमिगेंट्स, हैंडलिंग द फ्यूमिगेंट्स कैजुअली, क्योंकि फ्यूमिगेंट्स काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इफ़ यू इनहेल तो आपको काफ़ी सारे एजमेटिक प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर हो सकते हैं, तो इसलिए कहा गया है कि फ्यूमिगेंट्स को काफ़ी केयरफुली हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, so this was it for the second part of store gain press. We'll come up with this third part in which we'll discuss the scenario advanced based questions regarding these pests, because काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में इन पे रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, so I want every students to be very thorough with this topic. Okay, so that's all for today's. Thank you and have a nice day.